Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. This is Imranul Haq with the new and last reading video from book 16. The topic is feathers as decoration in European history. You can see this is a test 3, section 3, and it is GT reading and book 16. Okay, let's start. First of all, we are going to have our questions as well. So you can see some paragraphs are given. This is the whole passage. अब अगर आप ये देखते हैं तो अब देखिएगा कि वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 40. Okay, these are the questions. Write the correct number 1 to 8 in boxes. In fact, the boxes are given in exams and we are just doing practice, and we are just going to write down the numbers in front of the given paragraphs. You can see. Okay, so these are the list of headings we have. You can see list of headings. These are 8 headings and we are having 6 paragraphs. Okay, 2 more headings are given. Okay, don't worry about it. Let's going to start our today's video. इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि आप सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसको गो थ्रू करें, उसको पढ़ें, उसके बाद यहाँ से जो हेडिंग मैच कर रही होगी वो आपने यहाँ पे लगानी है. ठीक है जी. हाँ, लेट्स गो and start. We are going to read the first paragraphs. The very first paragraph, as you can see, this is the A paragraph. Okay. Today we do not generally associate feathers with the military. Today we are not associating, we are not linking feathers, as you know, these are the quills, or you can say the wings of any bird. Okay, so in Europe. Okay, yet history shows that in fact feathers have played an intriguing role, you can say, intriguing role in Europe. Feathers have been playing a very important role or interesting role, you can say, in European military clothings. The bersagli of the Italian army, for example, still wear. Okay, they are still wearing a bunch of long black feathers in their hats. They are wearing in their hats. Okay, so they are wearing in their hats, hanging down to one side, and those what you call that, those feathers are hanging down. Okay, while so here we have seen till here the what you call that Italian army they are wearing, and those black feathers are hanging down, while British fusilier हैव अ क्लिप्ड फेदर्स. आप देख सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश है वो पहनते हैं क्लिप्ड वेदर, जो क्लिप्ड फेदर प्लूम, वो जो कटे हुए हैं, दे आर वेयरिंग clipped, whose color varies according to the regiment, and they are wearing different colors. Okay, according to the regiment or their unit. The royalist in the English Civil War adorn means decorated their headgears. Headgears means what they were wearing, like hats or whatsoever they were wearing. Headgear with ostrich feather. Okay, they were decorating their headgears with ostrich feathers. Okay, so underline all these words when you go through or when you skim the text. Underline all these words. Historically, feathers were incredibly you can see incredibly expressive accessory for men. Okay, even here you can see also this was expressive accessory. Okay, for men. Here's he is talking about a particular gender, observes Cambridge historian Professor Yulinka Rublok observed this, that the mostly men were wearing, and it was, you can say, incredible accessory for men. Incredible, you can say, important. Observes. Okay, so nobody has really looked at why this was the case. Nobody knows what was the case, why the men were wearing, and why was the necessary for only men. That story that I want to tell. ये है वो कहानी जो वो बताना चाहती है. Roblox is beginning to study the use of feather work in early modern fashions. She is also telling about the study
to study. She is going to study the use of feather work in early modern fashion as part of a joint project between, ठीक है, this was a project, okay, between University of Cambridge, Basel and Bonn. Okay, they are doing this research and she is working on that project. To the outsiders, who are outsiders, it's preoccupations. हर को रिसर्चर मीन्स हर को रिसर्चर्स उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके साथ रिसर्च करने वाले जो हैं, आर स्टडीइंग गोल्ड, वो गोल्ड पे रिसर्च कर रहे हैं, ग्लास पे, शीशे पे, वेल्स वगैरह पे, माइट सीम सरप्राइजिंग, उनको ये बड़ा अजीब सा लगता है कि वो जो है वो फैदर्स पे रिसर्च हो रही है वहाँ पे। येट सच मटेरियल सस्टेन सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज एंड एक्सपर्टीज, ये मटेरियल जो है फैदर्स का ये मुस्तहकम बनाता है, सस्टेन्ड टू मेक मोर इनक्रेडिबल इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फॉर इकोनॉमीज एंड एक्सपर्टीज़, यानी जो चीज़ें महारत वाली चीज़ें हैं और जो मईशत है उसके लिए भी ये काफ़ी बेहतर चीज़ है, यानी जो पर हैं, जो परों का इस्तेमाल है, जो कि हम देखते हैं कि जी कहाँ पे ये पैराग्राफ है, द लिंक बिटवीन फैदर्स। यहाँ तक तो अगर आप देखें तो द लिंक बिटवीन फैदर्स काफ़ी हद तक मिलता जुलता है कि फैदर्स जो हैं वो हेड्स पे पहने जाते थे, ठीक है, फिर मिलिट्री पहनती थी, फिर दूसरी जो ब्रिटिश है, इटालियन है, वो पहनते थे हेड्स, हेड गियर में पहनते थे, एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस। अगर आप देख रहे हैं तो ये वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस की बात वो नहीं करता। एन अनसूटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पज, देयर इज नॉट मैंशनड that it was unsuitable for military decoration. A significant rise in the popularity, nothing is mentioned about the popularity rise or fall of the feathers popularity, nothing mentioned. Growing disapproval, you can see there was not any kind of word of disapproval. Sorry, disapproval, not this kind of word is given. The next thing is a new approach to researching the past, a new approach. There is nothing, any kind of approach that was researching the past, and past is not mentioned. Feathers as protection and a symbol of sophistication, you can say there is not written any kind of protection, इस तरह का protection भी नहीं लिखा, symbol of sophistication जो नफासत है, एक नफीस होने की अलामत है, उसके बारे में भी लिखा। एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेयरिंग ऑफ फैदर्स एंड जेंडर, अगर आप ये देखें जेंडर है और एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेयरिंग ऑफ फैदर्स, एक जो फैदर्स हैं उनके पहनने के दरमियान जो एक रिलेशन है वो, और एंड अ जेंडर इंटरेस्टिंग। आप देखें जेंडर, अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर हम पहले ही देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे वो बात करता है ये वाली, ये इनक्रेडिबल एक्सप्रेसिव एक्सेसरी फॉर मैन, मैन इज अ जेंडर, ठीक है, तो यहाँ पे वो जेंडर की बात करता है हियर। okay, so one thing is, the other thing is that the bersaglier of the Italian army, for example, wearing a bunch of long black feathers in their hats, देखिए इंटरेस्टिंग लिंक्स था कि वो पहनते हैं एंड हैंगिंग डाउन टू वन साइड, और एक साइड को वो, ठीक है जी, तो ये इंटरेस्टिंग लिंक है। फिर फ्यूजिलियर हैव अ क्लिप्ड, वो भी देखिए क्लिप्ड फैदर पहनते थे, ठीक है जी, तो आप ये भी देख रहे हैं कि वो क्लिप्ड फैदर था, ठीक है जी, तो ये। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके जो को रिसर्चर्स हैं वो गोल्ड, ग्लास एंड वेल्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जबकि वो जो है वो प्लूम पे कर रही है, ठीक है जी, जो हमारे फैदर्स हैं उस पे कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, ये वाली आप देख रहे हैं, ये चीज़ें बता रही हैं कि वर अडोन्ड विद हेड गियर विद ऑस्ट्रिच feathers. Even you can say the head gear also with ostrich feathers, na, they were decorated, they were adorned, they were bedecked with the ostrich feathers. So this is an interesting, and here you can say expressive accessory for men, it also expresses gender here. So the information, so an interesting relationship between the wearing of feathers and danger. So this is matching to the paragraph 1, you can say this one. So we'll write down the 7. So we are going to read out the paragraph B. Let's start paragraph B. Rublock has spotted that something unusual means something
sorry, unexpected, uncommon to happen with feathers during the 16th century. You can also underline the words which are very important. Unusual started to happen. Okay, feathers during the 16th century. You can say unusual started, something expected is started, has been started there in 16th century. In 1500 they were barely worn at all in Europe. 15वीं सदी में ये लोग पहनते थे इसको. 100 year later और 100 साल बाद they had become an indispensable accessory of the fashionable European men, and it had become inseparable. Almost all people they were wearing. Okay, it means indispensable. It has become an essential accessory फॉर द फैशनेबल यूरोपियन मैन. जो यूरोप के मैन थे, लोग थे, उनके लिए ये एक फैशन बन चुका था और ये एसेसरी लाजम हो चुकी थी. इन प्रॉस्परस ट्रेडिंग सेंटर्स, the citizens started wearing hats bedecked with feathers. Even you can say citizens जो थे, शहरी जो थे, they started wearing hats decorated with feathers from cranes and swallows. तो वो भी cranes और swallows, these are the bird names, they started wearing. Headgear was specially manufactured so that feathers could be inserted more easily. So special kind of headgears were manufactured, okay, so that they can insert or keep the feathers inside conveniently. You can see this one, so try to keep in mind this one. By 1573, Plantin's Flemish French dictionary was even obliged to offer words. So you can see that dictionary was also obliged, the dictionary was compelled to offer words to describe people who choose not to wear them. Okay, ji? So the dictionary should provide some kind of words for those people who are not wearing these what you call that feathers, recommending such term as featherless, या तो featherless बताएं जो feather नहीं पहनते, और या फिर unfeathered. इस तरह की जो terms हैं वो उन लोगों के लिए बताएं जो नहीं पहनते. ठीक है जी. So feather work became a big business. ये एक big business भी बन चुका है. From Paraguay and Nuremberg to Paris and Madrid, people started to make a living from decorating feathers from clothing. Impressive efforts went into dyeing them. अब 1548, अब देखें impressive जो efforts हैं वो भी उनको डाइंग कर रहे हैं, डाइंग के लिए. रेसिपी रिकमेंड्स यूजिंग एशेज, lead monoxide. अब ये देखें कि यहाँ पे भी lead monoxide and river water to create a very beautiful black, for example. ठीक है जी. तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास जितना भी हमने पढ़ा. अब देखते हैं द लिंक बिटवीन फेदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी. अब देखते हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी गई. एन अनसूटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री पर्पजेस, ये भी नहीं दिया गया. अ सिग्निफिकेंट राइज इन पॉपुलर, ये देखें सिग्निफिकेंट, अ प्रोमिनेंट राइज, a much rise in popularity of the feathers की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी. फैशनेबल लोग जो थे वो पहनते थे, उसको डाई करते थे. ठीक है जी. डाइंग, इसके लिए बिजनेस स्टार्ट हो गया. इवन यू कैन सी ऑल द थिंग्स हेयर. ठीक है. और इंडिस्पेंसेबल एसेसरी बन चुका था ये फैशनेबल यूरोपियन के लिए. प्रॉस्पेरस जो ट्रेडिंग सेंटर था वहाँ पे भी सिटीजन स्टार्टेड वेयरिंग हैट्स, वो भी डेकोरेटेड हैट्स पहना शुरू हो गए थे. ठीक है जी. और क्रेन स्वेलोज के बने थे, फिर इनको डाई किया जाता था. आप देख रहे हैं यहाँ पे जी, ये देखें वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक. ये देखें एफर्ट्स वेंट इनटू डाइंग देम. सो इसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. तो ये चूँकि हमारा दिया गया है तीसरे में ये, तो हम विल put 3. Okay, so let's go for the third paragraph. We are going to read out the third paragraph. Why is this happened will become clearer as Rublak project develops. Okay, one crucial driver however was exploration.
ठीक है जी. वन थिंग, बिकॉज वाइट हैज बिकम, आई मीन, वेरी पॉपुलर. ओके. One crucial driver was exploration. Exploration means people, they were exploring the other world, the discovery of new lands, you can say. Here you can say he is talking about some lands, okay, exploration, especially in South America. Okay. Compared with many of other species, the European, you can see here, even South America, European colonists encountered exotic birds. Even here you can see, compared with many of other species, दूसरी जो स्पीशीज हैं, बहुत से जो जानवर हैं या परिंदे हैं, उनके मुकाबले में अर्ली यूरोपियन colonists, early European colonists encountered, they faced, they saw exotic birds. Exotic birds means non-native birds could be captured. They captured, transported, and kept with relative ease, and they kept them with them. Europe experienced a sudden bird craze. Europe experienced a sudden bird craze as exotic birds became a relatively common sight in the continents of a largest market. The exotic birds have become very popular in the markets of Europe. Okay, so next we are going to read out the rest of the paragraphs. Given the link, you can say, given the link with the new territories and conquest. Okay, so यहाँ पे जो feather है उसका लिंक किया जा रहा है उसको न्यू टेरिटरीज में और न्यू कंक्वेस्ट जो हैं रूलिंग एलिट्स के साथ. वोर feathers partly to express their power and reach. वो भी पहनते थे, रूलिंग एलीट पहनते थे कन्क्वेस्ट के तौर जब होती थी, उसके जो न्यू टेरिटरीज थी वहाँ पे पहना जाता था, रूलिंग एलीट पहनती थी टू एक्सप्रेस देयर पावर एंड रीच. बट दे वर ऑल्सो मोर complex reasons भी थी. In 1599 the examples Duke Frederick of Württemberg held a display at his court at which he personally appeared wearing a costume covered in exotic birds. अब देख सकते हैं कि ये जो वटरबर्ग का ड्यूक था उसने भी एक जो कॉस्ट्यूम ड्रेस पहना हुआ था कवर्ड इन एग्जॉटिक feathers. He was also wearing a dress on which some exotic feathers were decorated. आप देख सकते हैं कि exotic birds उसके कॉस्ट्यूम पे लगाए हुए थे. And representing the America, he was representing the America. This was not just a symbol of power but of cultural connectedness. ये कल्चरल कनेक्टेड सिर्फ पावर की अलामत नहीं था बट ऑफ कल्चरल कनेक्टेडनेस. ही वांट टू ब्रिंग द हार्मनी थ्रू, आई मीन ब्रिंगिंग द कल्चर्स टुगेदर. Roblox suggests that message seemed to be that he was embracing the global. He was embracing the global in a duchy that was quite insular and territorial. Okay, चलें तो हम देखते हैं जी कि उसने कहाँ पे दिया हुआ जी. अब देखिएगा जी, ये देखें द लिंक बिटवीन फेदर्स. आप देख रहे हैं द लिंक, उसने लिंक की बात की बिटवीन फेदर्स एंड द वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी. हमने पढ़ा हुआ है साउथ अमेरिका पढ़ा हुआ है, यूरोपियन पढ़ा हुआ है, वहाँ पे फिर अमेरिका का पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आप देख लें कि इंटरनेशनल द लिंक बिटवीन फेदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी. इसका आप ये देख लीजिएगा वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी और इसमें जो हमने दिया है फेदर्स एंड वाइडर इंटरनेशनल. ये देखिएगा given the link with new territories, ये देखें ठीक है, and conquest. Ruling elites wore feathers partly to express their power and reach. वो पावर और रीच के लिए, और इसका लिंक जो था वो डिफरेंट टेरिटरीज को कनकस्ट के दौरान और रूलिंग लीड्स जो थी ये अवेयरनेस पैदा करता है. बट वर मोर कम्प्लेक्स रीजन. अब ये जो है ड्यूक फ्रेडरिक जो है उसने भी पहना हुआ था कोट पे, ठीक है जी, और एग्जॉटिक बर्ड्स के साथ, जो एग्जॉटिक बर्ड्स थे, नॉन नेटिव बर्ड्स जो थे, उनके फैदर जो थे वो उसने अपने कॉस्ट्यूम पे लगाए हुए थे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस वाज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ पावर बट ऑफ कल्चरल कनेक्टेडनेस. ये जो हारमोनी के लिए भी था, कल्चर्स को पास लाने के लिए भी था. तो आप देख लें द लिंक बिटवीन फैदर्स एंड अ वाइडर इंटरनेशनल अवेयरनेस है. एन अनसूटेबल डेकोरेशन, इसका जिक्र नहीं है. ग्रोइंग अप डिसअप्रूवल, इसका भी जिक्र नहीं है. न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट भी नहीं है. feathers एज अ प्रोटेक्शन का भी जिक्र नहीं है. अ रीजन फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ feathers बाय सोल्जर, तो ये हमारे पास जो वन है उसका ही आ रहा है. दिस इज वन. लेट्स गो फॉर द सी पैराग्राफ, डी पैराग्राफ. ओके, डी.
Here this is D given. Nor were feathers worn by the powerful alone. At that time, powerful people were not only wearing these feathers. In 1530, a legislative assembly at Augsburg imposed restriction on peasants and traders, adopting that it clearly felt should be an elite fashion. सो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसने ये पाबंदियाँ इम्पोज कर दी पेजेंट्स जो किसान हैं उन पे और ताजरों पे कि ये सिर्फ और सिर्फ एलीट फैशन है. ठीक है जी. You can see this one that they are restricted to wear. Okay, the elite people can only wear because it is an elite fashion. The mayor did not last. ये जो पाबंदी थी ये ज़्यादा देर ना रही. Perhaps because health manuals of the era recommend feathers could keep the wearers safe. कि हेल्थ मैनुअल जो हैं उन्होंने उस दौर के उन्होंने ये कहा है recommend, वो कहते हैं कि फैदर जो हैं वो पहनने वाले को सेफ महफूज रखते हैं फ्रॉम बैड एयर, बुरी हवा से, कोल्ड ठंड से, एंड म्यास्मा और बुरी जो फॉग है उससे, धुंध से, डैम्प गीलेपन से, एंड एक्सेसिव हीट और बहुत ज़्यादा हीट से. ऑल ऑफ विच वर रिगार्डेड एज हैजर्डस. ये तमाम चीज़ों को नुकसानदेह समझा जाता था. ड्यूरिंग द 1550s दे आर हैजर्डस. ऑल दीज थिंग्स आर हैजर्डस. दीज थिंग्स. ओके. So some of the people they think that these are considered very hazardous and feathers could keep them safe, all of which were regarded as hazardous. During the 1550s, Eleanor of Toledo had hats made of peacocks. You can say peacocks feathers to keep her dry in the rain. Feathers उनको feather जो थे वो रेन में भी उनको ड्राई रखते थे. Gradually feathers came to indicate that the wearer was healthy and civilized. Some of the people they say that feathers keep them healthy and civilized, also well cultured. Artists and musicians took to wearing them as a mark of subtlety and style. Subtlety, and you can say artists and musicians they consider it a subtlety and style. Okay ji. So we are going to see this. First, an unsuitable decoration for military purpose, a significant rise in the popular. Now that one, growing disapproval of the trapping of birds, a new approach. Now feathers as a protection. You can say feather as a protection and a symbol of sophistication, subtlety. Okay, protection. Okay, this is given in 6. हम देखते हैं जी ये दोबारा से feather as a protection and symbol of sophistication. दोबारा से हम इसको देख लेते हैं. डी पैराग्राफ जो है उसमें वो कहता है, ये देखिएगा. The mayor did not, because health manuals of the era recommend feathers could keep the wearer safe from bad air, cold miasma, okay, damp or excessive heat, which was regarded as hazardous. And even hats made from peacock feathers keep them dry in the rain. Okay, आप देख सकते हैं ये सारे का सारा feathers as a प्रोटेक्शन भी करते थे एंड अ सिंबल ऑफ सोफिस्टिकेशन. एंड एट द एंड अगर आप देखें तो ये भी देखें कहते हैं आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस टुक टू वेयरिंग देम एज अ मार्क ऑफ सटिलिटी, सोफिस्टिकेशन एंड स्टाइल. ठीक है जी. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं यहाँ पे ये वाला. ठीक है, आप इसमें देख लें. ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट जो है उसको गो थ्रू करते हैं. की पैराग्राफ पढ़ते हैं. एज विद मोस्ट फैट्स craze, as with most crazes, this enthusiasm eventually wore off. ये जो जज्बा था, जोश था, eventually faded. आखिरकार ये मदम हो गया, कम पड़ गया. By the mid of the 17th century, feathers were out of style. Okay जी. Out of style. They were out of the fashion before they were in. Striking. With one striking exception. यहाँ पे एक चीज़ के अलावा बाकी इसका जो जज्बा था वो कम पड़ गया. वो क्या था? Within the army of the Europe, feathers remained an essential part. Still they were using in the costume of military in Europe. Okay. बाकी सारे जो थे वो कम हो गए थे लेकिन मिलिट्री में अभी भी इसको पहना जाता था. Rublock thinks that there may have been several reasons for strange contradiction. इस contradiction की काफ़ी reasons हैं.
इट इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ ग्रेसफुल वॉरफेयरिंग। इसको कहा जाता था कि ये जो शानदार जंग है, शानदार बहादुरी है, इसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता था, उसके नजरिए के साथ। शी सेज दिस वॉज अ पीरियड व्हेन देयर वर नो स्टैंडिंग आर्मीज, दिस वॉज टाइम व्हेन देयर वॉज नॉट स्टैंडिंग आर्मीज, इट वॉज हार्ड टू ड्राफ्ट सोल्जर। वन solution was to aesthetize the army. Aestheticize means to beautify the army. वन रीज़न ये थी एक कि आप जो आपकी आर्मी है उसको कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, टू मेक इट सीम ग्रेसफुल, ताकि वो खूबसूरत लगे एंड पावरफुल और ताकतवर लगे। फैदर्स बिकेम एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ एन आर्ट ऑफ वारफेयर। और फैदर को जो जंग का एक फ़न है, जो महारत है, उसके आइडिया के साथ भी मुंसलिक किया जाने लगा। देर वर ऑल्सो ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मिलिट्री गाब। ये मिलिट्री गाब, मिलिट्री जो क्लोथिंग थी, उसका भी एक पार्ट बन गया अमंग मैनी नेटिव अमेरिकन, अमेरिका में भी, पीपल्स एंड इन द ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर में भी। रोबलॉक, ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत को कहते हैं। Robelock believes that just as some of these cultures consider the feathers of certain birds to be highly significant, some of people they say that they are very important or highly significant and sometimes scared. European soldiers saw the feather as imparting. European soldier कहते हैं कि feather जो हैं they give noble passions, दे अवार्ड नोबल पैशंस, उनमें जज्बा लाते हैं, बहादुरी लेके आते हैं और हौसला लेके आते हैं, हौसला लेके आते हैं। अच्छा जी, अब हम देख ले ज़रा इसमें जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को देखते हैं। पहली तो ऑप्शंस ये अनसूटेबल डेकोरेशन फॉर मिलिट्री, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये हो चुका है। ग्रोइंग डिसअप्रूवल, ये भी नहीं आ रहा। न्यू अप्रोच, यहाँ पे किसी रिसर्च का जिक्र नहीं है। फैदर्स, ये भी हो चुका है, ये भी। ये अ रीज़न फॉर द कंटिन्यूड यूज़, जी ये देखें, अ रीज़न फॉर द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ फैदर्स बाय सोल्जर्स। सोल्जर्स जो हैं वो मुसलसल इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इनको इस्तेमाल इनका जारी रखा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो 8 ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रही है, ये 8 ऑप्शन है। देखते हैं ये कैसे आ रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये देख लें, ये जो है एस्थेटिसाइज है, ये तो एक मिलिट्री को एस्थेटिसाइज करती है। फिर ये जो है एक, ये देखिए, ये इट एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ ग्रेसफुल वारफेयरिंग है। और यही है कि ये जो जब वो ख़त्म हो चुका है, इवेंचुअली वॉर ऑफ हुआ है, ये देखें जब इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया, तो आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन हुई है। इसमें एक एक्सेप्शन रही है और वो आर्मी के अंदर है, वो था पार्ट ऑफ मिलिट्री कॉस्ट्यूम में, मिलिट्री कॉस्ट्यूम के साथ ही इसको रखा जाता था। अच्छा, फिर आप देखें कि ये एक नोशन था कि क्यों इसको जारी रखा गया, कंटिन्यू रखा गया इसका इस्तेमाल। इसका इस एसोसिएशन थी इसकी एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ ग्रेसफुल वारफेयरिंग, कि ये जो अच्छी तरह, जो एक अच्छी जंग है, जो एक शानदार जंग है, उसके नज़रिए से मुंसलिक है। फिर वो कहता है स्टैंडिंग आर्मीज, ये देखें, वन सॉल्यूशन टू द सेटिसाइज द मिलिट्री को ब्यूटीफाई करता था, टू मेक इट सीम ग्रेसफुल एंड पावरफुल, ये पावर और ग्रेस को भी शो करता था। ये इसलिए ये कंटिन्यू किया गया। फेदर्स बिकेम एसोसिएट विद द आइडिया ऑफ आर्ट ऑफ वारफेयर, और जंग की जो महारत थी उसके साथ भी इसको एसोसिएट किया गया, इसलिए ये जारी रखा गया। ठीक है जी, ये अमेरिका में भी नेटिव अमेरिकन पीपल जो थे वहां पे भी मिलिट्री गार्ब का हिस्सा था, मिलिट्री जो उसका हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर का भी। रुबलॉक बिलीव दैट जस्ट एज सम ऑफ दीज कल्चर कंसिडर द फेदर्स ऑफ सर्टन बर्ड्स टू बी हाईली सिग्निफिकेंट, जैसे रुबलॉक कहती है कि बहुत से दूसरे लोग जो हैं, सम ऑफ दीज कल्चर, जो सकाफतें हैं, वो कंसिडर करती हैं कि फेदर्स ऑफ सर्टन बर्ड्स हाईली सिग्निफिकेंट, कि कुछ जो बर्ड्स हैं उनके जो फेदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड समटाइम्स सेक्रेड, और वो सेक्रेड भी हैं। यूरोपियन सोल्जर्स सॉ द फेदर्स एज इम्पार्टिंग, और यूरोपियन सोल्जर जो हैं दे से ऑल्सो दैट दीज फेदर्स गिव नोबल पैशन, ये पैशन भी देते हैं, ब्रेवरी, वेलर एंड कर्ज, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको जारी रखा गया। अब देख लें यहाँ पे रीजन फॉर द कंटिन्यूड यूज ऑफ फेदर्स बाय सोल्जर्स। तो हमारे पास नेक्स्ट एफ है हमारे पास, वो देखते हैं जी।
इन टाइम हर रिसर्च में देयरफॉर रिवील अ टेंशन अबाउट द, ये देखिए यहाँ पे रिसर्च की बात आ रही है, हम बार बार वहां पे रिसर्च की बात कर रहे थे। देयरफॉर रिवील टेंशन अबाउट द ऑनगोइंग यूज ऑफ feathers in this unlikely context. But as she also notes, she is perhaps the first historian have spotted the curious emotional resonance of feathers in the military fashion at all. At all. Now you can see, उसने ये भी नोट करती है कि she is the perhaps the first historian to have spotted the curious emotional resonance of feather in military, कि वो पहली है जिसने मिलिट्री ने ये जो फेदर्स हैं इनकी बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट जो है उसको देखा है। ऑल दिस शोज अ सी चेंज इन मेथडोलॉजी, ये बहुत ज्यादा सी चेंज कहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होना इन मेथडोलॉजी। आप देख सकते हैं मेथडोलॉजी बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च, कि एक कंडक्ट कैसे रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है वो भी। ऑल दिस शोज अ सी चेंज इन मेथडोलॉजी, अब यहाँ पे मेथडोलॉजी का भी जिक्र आ रहा है, यहाँ पे सी चेंज बहुत ज्यादा, ठीक है। हिस्टोरियंस नो चार्ट द वेज शेपिंग द वेज, ठीक है जी। जब आप रिसर्च करते हैं तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा उस पर उसके वेज जो तलाश करते हैं, इन विच आर आइडेंटिटीज आर शेप्ड। अब ये देखें, कहता है हिस्टोरियंस नाउ चार्ट द वेज इन विच आर आइडेंटिटीज आर शेप्ड थ्रू डीप कनेक्शन विद, जी ये अब हिस्टोरियन जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे हमारी तरीके दरियाफ्त करते हैं। अब देखें, इन विच आर आइडेंटिटीज एज शेप्ड थ्रू डीप कनेक्शन विद द स्टफ, कि कैसे ये स्टफ के साथ, कैसे स्टफ ये जो पर हैं ये चीजें हैं इनके साथ हमारा कैसे गहरा तल्लक है, ठीक है। द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, वो मटेरियल वो स्टफ जिनके साथ हमारा गहरा तल्लक है, हमारी जिंदगियों का तल्लक है, वो पार्ट। अब ये देखें, हमने पढ़ा है बार बार अ न्यू अप्रोच टू रिसर्चिंग द पास्ट, ये 5 आ रहा है तो हम इसके साथ 5 लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो हम